So I'll request you guys to introduce yourself and then we'll officially start the session. Right, I would like Mr. Shehzad Khan, sir, आप अपना introduction lead करें. And thank you foremost to make us a part of the session. Pleasure is नहीं all जी mine. बिस्मिल्लाह आप करें जी फर्स्ट पहले आप Ladies as first. Okay, my name is Insia and I have been practicing human resource profession since last 10 years. And I have also been into soft skills training. And I'm glad to be a part of BPO because when you are associated with a BPO, you get interacted with, diversified clientele belonging to, a lot more industries like schools, hospitals, manufacturing, pharmaceuticals, and lot more to go. So I'm here today to look forward into, interacting with, brilliant students of DHA Soka University. Definitely. And inshallah, not only that, we are looking forward to hear from them and learn from them as well. So it's great to be a part of the session and we look forward. Thank you. That's great. Thank you, Insia. अच्छा मैं भी इंट्रोडक्शन करवा दूं अपना फॉर्मली जी. Ji, as you know, my name is Shehzad Khan and I'm working with Sul Pharmaceutical. It's around more than 8 years I have been here. और मैंने 2007 में मास्टर्स किया था HR में. Then I have joined Feroz 188 Mills as a management trainee. और it's around तकरीबन 10 साल हो चुके हैं HR field में. A few years back I did my another master's in psychology because I've learned कि सारी चीजें एक तरफ होती हैं. If you know this, तो this is something remarkable thing. तो सर में मेरे रोल काफ़ी चेंज होता रहा. आई हैव बीन वर्किंग फॉर एट ग्रुप लेवल IBL ग्रुप, देन आई वर्क एट प्लांट लेवल, देन फिर मैं कमर्शियल हेड ऑफिस बेसिकली काम किया लेकिन इट्स अराउंड 3 years हो गए कि ना आई हैव बीन वर्किंग फॉर सेल्स फंक्शन ऑफ सेल फार्मास्यूटिकल विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन आती है हमारी. तकरीबन 60% पॉपुलेशन हमारी सेल्स फोर्स है अक्रॉस पाकिस्तान. उनको मैं देख रहा हूँ, उनका पूरा HR मैनेज कर रहा हूँ और थोड़ा पढ़ने पढ़ाने का शौक है, मज़ा आता है चीज़ें करने में. यूनिवर्सिटी के साथ मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ. ट्रेनिंग के अंदर जो है वो फील्ड फोर्स की, आई हैव बीन वर्किंग विद फील्ड फोर्स ट्रेनिंग. और यूनिवर्सिटी के अंदर तो पिछले 5 साल से इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल जो इंस्टीट्यूट है या फार्मेसी डिपार्टमेंट है, आई हैव बीन वर्किंग ओवर देयर. तो बस एक छोटा सा ये इंट्रोडक्शन है. सीख रहे हैं स्टूडेंट है HR के. Thank you, Sir Shehzad, for your introduction. On behalf of DHA Soka University, I welcome you both. So shall we start? थैंक यू. जी बिस्मिल्लाह. Assalamu alaikum, ma'am. Welcome. I think we have two candidates right now, Jahangir Khan or Ismail. Jahangir actually is the moderator and CEO of the class. So he's managing. अच्छा चले. Okay, जबरदस्त है. Assalamu alaikum, Shehzad bhai. जी अस्सलाम वालेकुम. Walaikum कैसे हैं salam. जनाब? Shehzad, I'm good. How are you? जी आई एम फाइन. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे बात कर रहा हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन. इस्माइल साहब हैं हमारे साथ. इस्माइल आरिफ. Yes. इस्माइल कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं. Alhamdulillah, Ismail. My name is Shahzad. I am working in HR and we are interviewing for you for the position of management trainee in our organization. और हमारे साथ हमारी एक और कोलीग है मिस इंसिया. तो क्विकली टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. हमें अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं, क्या करते हैं और क्या आप चाहते हैं करना. My name is Mohammad Ismail. I'm currently enrolled in BBA semester 8 in DHA Soka University. I'm just 1 month away from my graduation, and I was working as a customer service and procurement officer I was recently working in a company named Botnight, an IT company where I'm working as a sales manager, where I'm doing the sales. And before that I was running my own dhaba cafe, and before that I was running an e-commerce store. I was operating this e-commerce store in for procurement and procurement officer and a customer service manager. And my aim is to become one of the best employees of a company where I can learn and polish my skills. अच्छा, are you sure you want to be a best employee for any organization? Confirm है इस बारे में? Yes. यार
आपके सीवी से देख के तो आइडिया हो रहा है आप एम्प्लॉय तो है नहीं, आप तो ज्यादातर वेंचर्स कर रहे हैं अपने। Recently, क्या I'm currently working in a sales as a sales manager in botnet company. तो बॉटनेट क्या है? तुम्हारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है बॉटनेट? No. I'm working for an organization. It's an IT company where I'm IT? handling the sales. Yes, where I'm handling the ओके, sales. अच्छा, चलें फिर तो मैं आई थिंक हमारी कोलीग है मिस इंसिया, उन्हें कनेक्ट करूंगा बिकॉज वो आईटी फर्म से हैं कि सेल्स मैनेजर आईटी क्या करता है, क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट फार्मा हमारे यहाँ तो तकरीबन 8 से 10 साल लगते हैं बंदे को सेल्स मैनेजर बनने में। तो आईटी के लिए मैं मिस इंसिया से रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपसे बात करेंगे। Sure, why not? मोहम्मद इस्माइल साहब, ये मुझे बताएं Yes. कि that you work, there is a diversified, I mean, your areas of interest are currently diversified. So, is it the IT industry only, the kind of industry that you want to work in No. future? Okay, but due to time issues and job issues, I'm working as a sales manager where I'm handling the sales of a newly started company named Botnet. They have introduced something just like Food Panda, where you can order anything by just you can order anything, any product. For suppose Mandi Al Khalij, you can just go on the Messenger Facebook, and you don't need a customer representative to order something. You can just go on their Messenger and order directly on their system. Okay, Ismail, sales itself, like there are two kinds of, there's a product sale, which is, and there is, you are into service sales, IT sales, and this is a kind of intellectual sales. So, working for BPO for the last couple of years, what we sell and what our sales force is basically dealing into, we customize ERPs for our clients. We have an in-house built enterprise resource management software. So we not only customize, but prior to customization, we deploy our business analyst on the client side. We understand their processes, we identify even the gaps, and then we map those gaps with the standard processes. We have those standard processes get mapped into, translated into our ERP, and then we deploy the entire system on the client side, and then we even we do the facility for the client, that we hire people, we train them, and then we make them use their ERP into their premises to make the entire system go very efficiently. So I would like to know from you that what is the end-to-end process that you carry about in your role. My end-to-end process would be to go to the stores, the shops, and sell them our product. Which is I don't only sell the product, I also sell the service. I tell them about the product we are selling, how they can easily make easy customers' life by not only mostly when customer is waiting or customer is on the line and they are offering they are waiting for you to take the orders. It is very frustrating for the customers. Botnet is a company where they have introduced a software which is connected to Facebook Messenger. They can easily go to Messenger. They can by going on the Messenger, they can directly order without having another person, without having a requirement of a person to take order from you. The Messenger is working just like a menu, online menu. You go there, you click on the food you are like, and then you select the delivery area. It will directly tell you the price of with delivery charges of a product, and then that's it. The order will directly pays to the company for the food chain. So how you handle rejections and how you handle your challenges into your work? The best thing we are doing right now is this is an organization which is looking for an investors right now, and this is kind of a food panda organization.
So if we have a drawback, or if we are facing any drawbacks from customers or from our side, same option we have on the messenger. If customer is having any problem, they can directly स्माइल क्या करना चाह रहे हो फ्यूचर में? would you carry on with the same, I mean the kind of same, you know, flavor into your future as well? No, actually I'm looking for a job in supply chain department, and recently I was looking for an internship in supply chain department, but due to low jobs in supply chain, so I was good. The second best option for me was sales. Okay, it's good you are exploring at the moment, but you know, at some point of time, when we find candidates with, you know, a lot more distractions into their you know, work roles, in some stage of time, you know, you will realize that it becomes very challenging for any recruiter to take on board with such candidate who is not focused. जैसे अभी पहले भी शहजाद साहब ने कहा था कि अपनी जो एक लाइन होती है ना, पाथ करियर लाइन, उसको उस पर स्टिक रहना और इसी के अंदर एक्सेल करना, ताकि आप किसी के लिए यूनिक सेलिंग पॉइंट की तरह बाहर आओ आफ्टर, you know, a certain period. So that always works good in every case, right? Mr. Shehzad, do we have any concluding question for Ismail? जी जी बिल्कुल, आई थिंक बड़ा अच्छा इनका एक्सपीरियंस है, लेकिन इस्माइल हमें से मुराद मुझे और आपको, हम दोनों को थोड़ा फोकस होना पड़ेगा वेयर वी वांट टू गो। सेल्स के अंदर आप जाना चाहते हैं, आपके जो वेंचर्स हैं डिफरेंट, आप देखें आपके इंटरेस्ट क्या है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, तुम अपनी कोई मुझे 2 से 3 स्ट्रेंथ बता सकते हो? 2 से 3 स्ट्रेंथ्स मेरी ये कि आई एम वेरी गुड एट कस्टमर सर्विस। सेकेंडली, जो भी मैं अपने फादर का बिजनेस हैंडल कर रहा हूँ, या मैं कोई जैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएट हैंडल कर रहा था इससे पहले, तो एक ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर था, तो उधर मैं एज अ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर ज्वाइन हुआ था, क्योंकि आई एम वेरी गुड एट डीलिंग विद जो सप्लायर्स, तो सप्लाई चेन से रिलेटेड चीजें ये सारी, तो मैं इन चीजों में अच्छा हूँ काफी, मतलब सप्लायर्स से आप कांटेक्ट रखना। तो जैसे मिस इंसिया ने कहा कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, उस पर बैंक करो। आई थिंक आपके फादर का अगरचे कोई है छोटा सेट, आप उसको रन करें क्विकली, ये आपको फ्यूचर में ज़्यादा हेल्प करेगा। और मैं ये नहीं कह रहा यू डोंट वांट टू गो फॉर जॉब, आप नहीं जाएं, लेकिन मे भी आपके दिल में कोई हो कि जी मैंने 2 से 3 वेंचर किए हैं, और जॉब में तो देखें थोड़ा बाउंडिंग हो जाती है ना, सुबह जैसे यहाँ पे आना था, हमें 9 बजे आना था, आज हम यहाँ 8:15 बजे पहुंच गए, हमें आपके साथ एक्टिविटी करनी थी, तो सम टाइम आपको कुछ ऐसे भी काम करने पड़ते हैं which clash with your interest and personality, and that's create a kind of, you know, demotivation in yourself, and that create a low performance। तो ये सब कनेक्शन है आपस में। तो अगेन इट्स अ वेरी गुड टाइम, सोचो मैंने कहाँ जाना है, जॉब में के क्या प्लस पॉइंट हैं, मेरे अपने काम के क्या प्लस पॉइंट हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट हैं, एंड देन मेक योर डिसीजन। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक ब्रदर। थैंक यू। थैंक यू। All right, thank you Ismail for joining in. Take care, Hafiz. Hafiz। Fahad, are you ready? आप कुछ सेट हो गए, मोबाइल सेट हो गया आपका? सर 1 सेकंड, सिर्फ लैपटॉप से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। 1 सेकंड हो गया? आप 1 मिनट क्या दे दे। यार आप तो हमें स्क्रीन दिखा रहे हैं, हमें पढ़ना है क्या? सर ये मैं मैम को दिखा रहा था कि ये मुझे एक्सेप्ट कर ले हो जाएगा। अच्छा, okay. Actually, the name was very different. That's why I was not allowing that. That's Umar Khan. भाई हमारे पास जो दो आ रहे हैं, उमर, मैट, फात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप आई थिंक डोल यूज कर रहे हैं, इको हो रही है आवाज। आप 2 सिस्टम पे हैं, मोबाइल लैपटॉप, क्या कर रहे हैं?
फहद कुछ बोले, आवाज इको होगी शायद आपकी। नहीं सर, अभी होगी, ये मैंने लैपटॉप वाली बंद कर दी है आवाज। अच्छा, all right. ओके ग्रेट। फहद ये बताएं रात को सोए कब थे? सर हाँ, कराची वाले 12 से पहले तो नहीं सोते, नॉर्मल बंदा, कोई ऑफिस वाला बंदा 11 बजे सो जाता है। आप कब सोए थे? तकरीबन। अच्छा चले, दैट्स ग्रेट। नाश्ता नहीं किया आपने अभी तक? आपकी आवाज जो है ना वो हमें पूरी कहानी सुना रही है। सर असल में मैं अब काम से गया हुआ था कोयटा, तो रात को देर से वापस आया। अच्छा चले जी, अल्लाह करे आप खैरियत से आए। फाद साहब, मेरा नाम शहजाद है, मैं एचआर में होता हूँ सेल्फ फार्मा में। हमारे साथ हमारी एचआर की कोलीग है मिस इंसिया, और आज हम आपको इंटरव्यू कर रहे हैं फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी। तो क्विकली जरा हमें बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप और क्या, समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में और क्या चाहते हैं आप करना। सर करंटली आई एम इन एचआर फ्रॉम Yusufa University. This is my last semester, and along with these I have started my own work with my family members of solar installation and services. So in future I'm going to pursue this. और ये बताइए, आपकी जीपीए कितनी अभी, ये 2.5 आ रही है, तो कम क्यों आ रही है? सर ये शुरू में जो कोर्सेज थे मेरे उनमें थोड़ी सी कम थी। अच्छा, मैं जो है मैं हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो। जी जी फहद, आप कुछ बता रहे थे, आपकी जीपीए। शुरू में असल में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें मैं काफी डिस्टर्ब हो गया था, तो अच्छा पढ़ाई अच्छा, शुरू के सेमेस्टर में मैंने फोकस नहीं किया, क्योंकि वो ओके ग्रेट। सीरियस, तो उसमें में काफी। अब क्या सोच रहे हैं फहद, क्या करना है आगे? मैंने काम स्टार्ट किया है अपना सोलर का, जिसमें मैं जबरदस्त। इंडस्ट्रियल काम भी कर रहा हूँ और रेजिडेंशियल भी कर रहा हूँ। तो इसी को मुझे अभी आगे तकरीबन 3 से 4 साल तक का प्लान है, इसमें इसी को आगे कैरी करना है। ओके, तो सोलर में काफी मार्जिन है, आजकल लोग काफी कन्वर्जन पे जा रहे हैं सोलर पे। रिन्यूएबल एनर्जी है ना उसका, ग्रीन ओके आजकल सही इन है। सही सही, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, अपने बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। क्या देखते हैं आपके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट एरिया पर्सनालिटी में अभी? सर इन टर्म्स ऑफ सेल्स मैंने जो है काफी अभी कर भी रहा हूँ, जिस तरह 7-8 महीने से तकरीबन 8 से 9 महीने हो गए, तो काफी चीजें इम्प्रूव की भी हैं और काफी अभी और करनी भी हैं। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्सनालिटी, आपकी जात में, आपकी पर्सनल शख्सियत में। शख्सियत में भी सर वक्त के साथ साथ काफी चीजें करनी यानी पड़ती कभी हैं सोचा चेंज। नहीं, टाइम नहीं मिला सोचने का? अच्छा ये बता, सर जब जरूरत कर लेता हूँ पड़ेगी। चेंज। अच्छा अच्छा सही है, चलें। तो ये बता दें, आपकी कोई अच्छी बात बता दें हमें, 2 से 3 क्विकली। अच्छी बात है सर, काफी ज्यादा है। हाँ, ये मतलब बहुत सारी होंगी। नहीं कहता मैं, और जो कमिटमेंट करता हूँ उसे भी कंप्लीट करता हूँ, और तीसरी ये कि ख्याल भी रखता हूँ लोगों का। अच्छा ख्याल रखते हैं। ये बताएं, आपको गुस्सा आता है तो गुस्से का इजहार कैसे करते हैं? तो सर खामोश हो जाता हूँ। लग तो नहीं रहे आप। हो जाता हूँ। अच्छा खामोश हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जब जो बंदा खामोश होता है ना, वो फिर लावा जब बाहर आता है तो बहुत बुरा फटता है। इज इट ट्रू? हाँ जी, ऐसा भी है सर, कभी कभी हो सही, जाता है। कभी कभी हो जाता है। आपका मंथ ऑफ बर्थ कौन सा है ये बताइए? मंथ ऑफ बर्थ बताइए अपना। मंथ ऑफ बर्थ याद नवंबर। नहीं? कंफर्म है? देखो अभी सोच के बताया आपने। नवंबर ही है। नवंबर, अच्छा चले, दैट्स ग्रेट। ओवर टू मिस सिंसिया प्लीज। वैसे आई डोंट हैव सच लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आपने कहा आप बड़ा एक जबरदस्त अपना फैमिली बिजनेस परस्यू कर रहे हैं, तो
तो एकेडमिकली जो है आगे या कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड कोई गोल्स हैं आपके तो वो शेयर करें। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ ये गोल्स हैं कि मुझे इनके साथ मिलके काम करना है। जिस तरह अभी भी मैं काफी इंडस्ट्रीज को अप्रोच करता हूँ जस्ट टू गेट विद देम, सम ऑफ देम आर फैब्रिकेटर्स, जैसे कि बड़े स्टील्स के नाम हैं। तो इनके साथ मैं अब स्टार्ट मैंने ये चीज कर दी है कि इन्हें अपने आइडिया पिच करना और इनके साथ मिलके काम करना। सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ काम करना है, लेकिन एज अ मर्जर साइन करना है। जॉब की तरफ मेरा कोई राइट। अच्छा, जॉब की तरफ नहीं तो आप अपने अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करेंगे? एक्सपेंड करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि मर्जर साइन करेंगे दूसरी कंपनीज के साथ और नई चीजों को अप्रोच करेंगे, नए एरियाज एक्सप्लोर करेंगे। जिस तरह अभी हम कोयटा में जो माइनिंग एरिया है स्पिन कारस, वहाँ पे अप्रोच किया है कि कोल माइंस जो हैं हम वहाँ पे ये सिस्टम इंस्टॉल करके दें। सो इस तरह से एक्सपेंड करने का सोचा है कि जियोग्राफिकल एक्सपेंशन के ऊपर भी जाएं और इन कराची में जिस तरह पहले से चल रहा है इसको भी और ज्यादा इफेक्टिव कर दें, नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर जाएं। राइट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। फहद। जी फहद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया हमें सर। All right, Fahad. Thank you so much for joining in. Take care. Dafiz. अभी तक जितने स्टूडेंट्स हैं, दे आर मोर इनटू द अदर फील्ड अदर देन दैट जो उन्होंने अपना मेजर्स अभी चूज किया हुआ है। दे आर नॉट मतलब रेडी टू एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ अच्छा, स्पेशलाइजेशन। तो बीबी में वो किसी और जगह किसी और तरह स्पेशलाइजेशन आप लोग दे रहे हैं? अभी सर एक्चुअली स्पेशलाइजेशन ये कर रहे हैं, इन्होंने 7th 8th सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन चूज की हुई है। अच्छा, सब बच्चे अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करके दे आर परसुइंग हमें तो दैट। पता ही नहीं है। फिर वो आगे अगर एमबीएस अच्छा, ये है अगर वो आगे एमबीएस में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट्स अप टू ये देम। हमारा ये जो करियर गाइडेंस वाला है, मेरे ख्याल से ये हम आके फाइनल ईयर में करते हैं या जब वो लोग अपना ऑलरेडी एक मेजर सिलेक्ट कर चुके होते हैं। थोड़ी सी मुझे बिल्कुल। काउंसलिंग का सेटअप थोड़ा पहले नहीं होना चाहिए। शहजाद, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल। क्योंकि ये ब्लंडर मैंने भी किया हुआ है ना। 4 साल मैंने इंजीनियरिंग की एनएडी के अंदर एंड आई डिस्टिंक्शन एंड व्हेन आई वाज एक्चुअली आई फेल इनटू द, मैंने पीटीसीएल में भी और यूफोन इन जगहों पे इंटर्नशिप्स की। व्हेन आई रियलाइज के एक्चुअली री इंजीनियरिंग पाकिस्तान में नहीं होती एज सच, क्योंकि सारी फैब्रिकेशन और सब कुछ बाहर से होके आता है। यहाँ पे लोग सिर्फ उसे मेंटेन और ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं ना, इंजीनियरिंग जो एक्चुअली होती है वो नहीं होती है। सो वी आर जस्ट मेंटेनिंग ओवर हियर। तो बाद में पता चला देन आई एक्सप्लोर, तो मतलब एक्सप्लोरेशन होती है जब थोड़े थोड़े बाल वो होने लगते हैं ना। तो वो अभी ये से सवाल जब ऐसे मैंने ही आपका है। इंट्रो पढ़ा था तो मेरे ज़हन में भी सवाल आया था कि आई विश आपसे फेस टू फेस मुलाकात होती तो जरूर मैं आपसे सवाल करता, लेकिन इस बात का जवाब आपने खुद ही दे दिया। और इस पर आपने जो बात कही, काम आया ना, मेरे शौहर जो है वो एयरफोर्स के इंजीनियर हैं, तो उन्होंने कहा मुझे सब कुछ समझने के लिए तो हम सबको एक हादसा चाहिए। एग्जैक्टली। तो बाद दफा अच्छे यही हादसे आई हो गेस जाते हैं स्टूडेंट्स भी जी। इसी तरह ही एक्सप्लोर कर रहे हैं कि लाइक दे आर अगेन ट्राइंग एंड ट्राइंग सो मेनी जी एरियाज हाँ, एंड देन मे बी एट द एंड इंशाल्लाह लेकिन दे वुड बी। लेकिन बस ऐसी नई चीज उनको बताने की जरूरत है। ओवर एक्सप्लोर ना करें। ओवर कॉन्फिडेंट, इंसान को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत ओवर भी जाए, लेकिन ओवर एक्सप्लोरेशन ना करें। एटलीस्ट 1 से 2 ऑप्शन रखें हर जगह। अगर चाहे इफ यू थिंक मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, जनरलाइज अप्रोच जा रही है, तो फिर वो फंस जाएंगे। फिर वही मिस इंसिया वाली बात, चले फिर हमने भी कुछ धक्के खाए जिंदगी में, लेकिन कुछ प्लान करें अपने लिए। लेकिन आई गेस फिर वो करियर पाथ जो आपका होता है ना, क्योंकि इतनी ज्यादा स्विचिंग भी एंड स्वैपिंग, वो एक आपकी सीवी पे भी दैट्स अगेन आई फील कि वो इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं देती। नहीं रिक्रूटर भी सही। कंफ्यूज रहता है कि मुझे किस किस्म का कैंडिडेट चाहिए, आइदर दैट पर्सन इज द राइट वन और नॉट। अभी शायद ये कर रहे तो हो सकता है थोड़े दिनों के बाद कहेगा मुझे ऑर्गेनाइजेशन भी समझ नहीं आ रही या मेरा दिल नहीं चाह रहा इधर। सो अगेन यू नीड टू सी कि आपको रिटेन भी रखना है, रिटेंशन भी होनी चाहिए। तो जी हम जी इतना नहीं देखते, लेकिन अगर थोड़ा सा मिड लेवल का बंदा आ जाता है और उसने बहुत जगहों पे अपनी फिंगर्स पोक की हुई होती हैं, तो हम उसको लिटरली अनस्टेबल कंसिडर करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो
डायरेक्शन क्लियर नहीं है, एंड व्हाई वुड वी हायर समबडी हु इज अ जैक ऑफ ऑल ना, तो हम फिर क्या करते हैं कि उसी को प्रेफर करते हैं जो उस फील्ड का एक्चुअली एक्सपर्टीज रखता हो. So this is one thing. All right, we have next candidate, Shahzeeb Khan. अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम शाहजेब साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप लोग बताइए शाहजेब ठीक साहब, ठाक? जी मेरा नाम और आपका नाम काफ़ी मिलता जुलता है। मेरा नाम शहजाद खान है और आई एम वर्किंग विद सेल फार्मास्यूटिकल और एचआर में होता हूँ। हमारे साथ में सिंसी हमारी एचआर कोलीग। तो आप थोड़ा हमें अपने बारे में बताइए सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। Okay, sir. So my name is Shahzib Khan, and I'm doing my BBA from DHSFI University. It's my last semester, and other than studies, I'm doing social working since last 3 years, and I have my own NGO. तो पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें भी सर साथ साथ हैं, and I'm doing my BBA in marketing. ओके, हमें अपनी एनजीओ का बताइए, क्या करती है वो? सर बेसिकली वी हेल्प स्कोप ऑफ होप नाम है एनजीओ का, और कराची से जितने भी स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, दे आर अ पार्ट ऑफ दैट, एंड आई हैव अ टीम ऑफ मोर देन 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम कराची। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई काम है, जिसमें काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी के जिस पे काम होता है। तो डिपेंड करता है कि क्या एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, उस हवाले से ही सारी चीज़ें प्लान होती हैं और फिर आगे उनको हम लेके चलते हैं। नहीं, मुझे अभी समझ नहीं आया क्या एक्टिविटी आप करते हैं, क्या अभी तक मुझे समझ नहीं आया। ये एनजीओ सर करती क्या है? बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अब फॉर सपोज कोई एक एनजीओ है जो कि एजुकेशन पे काम कर रही है, बट वी हेल्प सिर्फ एजुकेशन पे काम नहीं कर रही, हम लोगों ने एजुकेशन पे भी काम करा है। इस पेंडेमिक में जितना भी 1.5 महीना पूरा जो हमारी फाइनेंशियल हेल्प देनी थी लोगों को या राशन डिस्ट्रीब्यूशन थी वो दी हैं, ब्लड ड्राइव्स हैं, सेमिनार्स हैं और विंटर ड्राइव्स हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कोई एक चीज़ नहीं है। जब भी मैंने आपको बताया कि काम काफी डाइवर्सिफाई है, तो हम लोग हर एस्पेक्ट को थोड़ा थोड़ा कवर करने की कोशिश करते हैं। फंडिंग कहाँ से हो रही है उसकी? मेन फंडिंग तो हम लोग खुद 100 मेंबर्स हैं, तो सारे स्टूडेंट्स हैं। अगर किसी एक्टिविटी के लिए 500-500 रुपए हम लोग खुद भी कंट्रीब्यूट करें तो इट्स अ बिग अमाउंट। हम लोग और 3 साल से काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि वी हेल्प जो है वो सच में काम कर रही है, तो पीपल डू सपोर्ट अस। चलो मुझे ये बता दें क्विकली, ये लास्ट 6 मंथ का मुझे लास्ट क्वार्टर का बता दें, आपकी अर्निंग और एक्सपेंस रेशियो क्या रहा, कितनी कंट्रीब्यूशन हुई, बजट का थोड़ा बताएं मुझे। लास्ट 6 मंथ्स की अगर बात करें तो सर उसमें ऑलमोस्ट 2 एक्टिविटीज हम लोगों ने करी हैं, और बजट अगर हम दोनों का मैं आपको बताऊं वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख के करीब जो है उसमें फंडिंग जमा हुई थी और उसमें जो है वो यूज हुई है। लेकिन 500-500 रुपए जमा करें तो 2.5 लाख तो नहीं बनते? मैंने आपको ये भी बताया सर कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमें फॉलो करते हैं काफी टाइम से, क्योंकि 100 मेंबर्स हैं तो 100 फ्रेंड सर्कल्स हैं, 100 फैमिलीज हैं, और उसमें काफी सारे लोग हमारे साथ पे जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने विंटर रजिस्टर्ड है ड्राइव। आपकी? नो सर, नॉट येट, बट उस पर काम चल रहा है, हमारा प्रोसेस चल रहा है अभी रजिस्ट्रेशन का। तो ये तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वालों ने तो अनरजिस्टर्ड एनजीओ को पिछले 1-1.5 साल से काफी बैन किया हुआ, और वो तो फंडिंग में भी तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप। बिल्कुल आ भी ऐसा ही है सकते सर, हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम लोगों ने अपने एंड से कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसपे अगर आप जो है वो करें तो उस पर ज्यादा मसले मसाइल होता है। हम लोगों ने बहुत स्मूथ काम करा हुआ है और जो भी है वो सबके सामने है, तो इसमें अल्लाह नहीं, का शुक्र है कि कभी इशू होता आई नहीं है। रिस्पेक्ट आई रिस्पेक्ट शायद ऑल रिस्पेक्ट, लेकिन लॉ तो हुकूमत तो आपको पता है ना, अगर जो कोई बंदा कहीं पे भी किसी पॉइंट में आ जाए, दे गिव द रगड़ा टू द बंदा। आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट योर एनजीओ, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से 1-1.5 साल से बहुत मसले चले हैं। तो प्लीज बिल्कुल मेक सर। श्योर इसमें आप काम कर रहे हैं और आप एनजीओ कह रहे हैं, तो ये एक तरह की आप बहुत बड़ा रिस्क बेयर कर रहे हैं अपने साथ, तो प्लीज मेक श्योर आप इसको रिस्क को मिनिमम करें या वो करें। ओके, फ्यूचर एस्पिरेशन क्या है, क्या जाना चाहते हो, कहाँ अपने आप को देख रहे हो? फ्यूचर में सर अब जैसे बीबीए मार्केटिंग में परस्यू कर रहा हूँ अपना, और मैनेजिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो मेरा मार्केटिंग से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है फ्यूचर में, लेकिन आई वांट टू लीड एज एन हेड ऑफ ऑपरेशंस, और ऐसी कोई चीज जिसमें मैं अपने ऑपरेशंस जो भी मेरे अंडर लाए कर रहे हूँ या मैनेजमेंट का कोई भी
जो है वो उसमें जॉब उसकी डिस्क्रिप्शन हो, तो उसको मैं ज्यादा बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ। एंड आई एम सीइंग माई सेल्फ, बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं जिसमें अप्लाई करा जा सकता है इंशाल्लाह ताला, जैसी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, प्लान करा है, तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर दैट। मजा नहीं है आपके जवाब में। आपको जवाब पता क्या देना चाहिए था, आपके पास बहुत सॉलिड आंसर हो सकता है इसका। आपने जो जवाब दिया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। आपने कहा मैं ऑपरेशन मार्केटिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ब्रदर, आपको पता नहीं है, अगरचे आप अपनी एनजीओ, जो मैं कह रहा हूँ, आप इसको रजिस्टर्ड कराइए, अगरचे आप इसको कंटिन्यू कराते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इफ यू आर प्रॉपरली अरेंजिंग फंडिंग एंड डूइंग ऑल दिस एक्टिविटी, आप अगरचे कर रहे हैं सोशल वर्क। आजकल सोशल सेक्टर बहुत ग्रूम कर रहा है पाकिस्तान में। या तो एलएसएम, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जा रही है, उसके बाद सर्विस सेक्टर बहुत जा रहा है। और सर्विस सेक्टर में आप आ जाए एनजीओ में, वहां पे आप कुछ बनाते नहीं, सर्विस ही देते हैं। वहां पे बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। आप टीसीएफ के साथ काम कर सकते हैं, आप शौकत खाना के साथ काम कर सकते हैं, और बहुत सारी हमारी फॉरेन एनजीओज हैं। तो डोंट से लाइक दैट, कल को आपको लाइव इंटरव्यू में जाए मेरा मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है। यू कैन डू अ लॉट, लेकिन यू नीड टू कैपिटलाइज योर एक्सपीरियंस, लेकिन इट्स सॉलिड वर्किंग के साथ। ओके, सही है। इंप्रूवमेंट एरिया क्या है आपके अंदर? इम्प्रूवमेंट एरिया आई थिंक सर के टाइम मैनेजमेंट और कुछ अपने इश्यूज हैं कि मैं कह सकता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोफेशनल लाइफ में मुझे जितने अच्छे तरीके से चीज़ों को डील करना चाहिए उतने अच्छे तरीके से हो नहीं हो पाती हैं। उसमें बहुत सारे मैं समझता हूँ कि मेरे पर्सनल एंगर इश्यूज भी हैं और भी कुछ चीज़ें, तो आई एम वर्किंग ऑन दैट, आई एम वर्किंग ऑन माई पर्सनल थिंग्स सबसे पहले। इसीलिए जो मैंने पिछले 2-1 सवाल किए थे, आपको लगा हो थोड़े से वो चुपते हुए थे, लेकिन ये स्ट्रेस इंटरव्यू भी हम करते हैं कैंडिडेट का स्ट्रेस लेवल चेक करने के लिए, और आई वांट टू मेक दिस इंटरव्यू मोर टफ। अभी भी मैं आपको बहुत टफ टाइम दे सकता हूँ, लेकिन अगेन वर्क ऑन दैट। आप कैपिटलाइज करें अपने एक्सपीरियंस को, अपने आप के बारे में सोचें। और यस, इट्स अ गुड थिंग दैट यू आर एक्नॉलेजिंग यू हैव सर्टेन इशू, और इस पे काम करें। प्लीज वर्क ऑन दैट। कॉर्पोरेट सेक्टर में, कल को आपको एनजीओ सेक्टर में भी अगर चाहे आए, you need to have a very cool, calm and a very resilient personality. I am done almost. मिस इंसिया आपसे कुछ बातचीत करेंगे। सर आपने पूरा ही खंगाल लिया है शहज़ैद। Sorry. सारा ही, I mean, you know, all the questions are being done and explored. So yes, again, जो आपको guidance दिए हैं शहजाद साहब ने, that perfectly, you know, fall into for you. So best of luck for your future. थैंक यू मैम। आपके लास्ट कमेंट है, आई थिंक आप मस्कन में रहते हैं, वहां पे तो एक और साहब भी हैं जो रमजान में बाहर पूरा खाने का अरेंज करते हैं रमजान ड्राइव में। साद साहब, जानते हो ना आप? सर मस्कन अपार्टमेंट्स में जो है ऐसा नहीं है, लेकिन बयानी उसके हाइट में। करीब, हाँ बयानी हाइट्स में बिल्कुल मैं जानता हूँ। मतलब ऐसे जानता हूँ कि बहुत ज्यादा उनसे जान पहचान ऐसे सलाम दुआ के तौर पे है, लेकिन मैं जरूर देखा है मैंने उनको काम करते हुए रमजान में, और मैंने एक दो बार वॉलंटियर भी करा। चलो, विश यू बेस्ट ऑफ लक शादिब। Okay, thank you Shazib. Take care. थैंक यू मैम। Hafiz. हाफिज। I guess let's join back and then we have a next candidate because the meeting is about to over. To indulge with people. I love to negotiate with people in different aspects. So these are some things which needs to be there, I think, in every candidate or in any individual. What are your career goals, Aruba? My career goals is to make myself known enough that everybody in this world or even in my country know that this is Aruba Naseem and she is a multi-talented person. So I have that kind of personality. I want myself to be known like that, and there is no doubt, right? I've been known as a very good presenter. I've been known as a very talented and person with multiple flavors, a multiple combination. So this is आप famous होना चाह रहे हो? Not really, मैम। famous के बहुत means वैसे यहाँ पे, तो लेकिन मैं जिस तरह की फेमस होने चाहती हूँ, कोई बड़ा कोई कैरियर गोल आपका, बड़ा कोई सुपरस्टार है ना शहजाद,
ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है कि अरूबा wants to think be in the limelight. I think superstar बनने के लिए ना It's very आपको good. म्यूजिक इंडस्ट्री या जैसे आजकल के परसेप्शन है ना कि आप शोबिस में चले जाते हैं म्यूजिक स्टार बन जाते हैं ना, नहीं, आई डोंट थिंक दैट। लाइक म्यूजिक स्टार या सुपरस्टार बनने के लिए आपको ना दिलों में घर होना चाहिए। दिलों में घर करने के लिए देयर इज नो शोबिस, यू जस्ट हैव टू गो विद योर स्किल्स, with your intuitions, with your confident, like I'm confident enough, I can do this, and you just get into it real quick. Majors क्या है आपके यहाँ पे? Majors, ma'am, I'm doing my bachelor's in marketing, so major is in marketing. So how you look forward कि आपके जो अपने aspirations हैं future के लिए, so how are you going to connect your आपने कहा आपको past में तो कोई interest नहीं है, तो how you are going to connect your present with your future? Since I'm doing my bachelor's in marketing, so the career, the future is my master's actually. Then from where do I get my master's and from which field I'm doing my master's? Obviously marketing, and I have a mind that I'm going to pursue my master's in international marketing from a very reputable and recognized university. Not DHS. Apart from actually from for this thing I would say that I love having different flavors, so I don't want to stick to one thing, I don't want to stick to one page of my book, so I want to experience more things. I want to indulge myself into various combinations, so I want to experience some other universities as well. So this is the part of my personality which comes in between. Acha, Shehzad seems to have a lot more interesting to ask from you, so hats off to you, Shehzad. No, of course. नहीं जी, मैं सिंथिया, मैं अपने पुराने इंटरव्यू पे सोच रहा था कि मैंने आपके क्वेश्चन बाय कर लिए, तो इसलिए मैं खामोश था। चलो जी, शुक्रिया, आपने मौका दिया। मिस रूपा, आपने कहा कि यू आर इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, तो व्हाई नॉट लम्स, व्हाई नॉट आईबीए, व्हाई इंटरनेशनल? क्या यहाँ पे यूनिवर्सिटीज का जो मैंने 2-3 नाम लिए, या लेट्स से डीएचए या लेट्स से कराची यूनिवर्सिटी, इनका वो आपके मुताबिक लेवल नहीं है कि आप यहाँ पे पढ़ सकें? Sir, I think they have a very rigorous or very rigid process of enrollment for individuals, right? And it's not about कि आप merit पे जा रहे हैं तो आपको मिल जाएगा, आप नहीं जा रहे तो मिल जाएगा. It's like I think यहाँ पे ना पाकिस्तान की बात करूँ मैं अगर, तो यहाँ पे हमें students को जो है especially यूनिवर्सिटी के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है, and this is a very bitter truth. You might disagree, but in various companies it's being mentioned in their post or in their job applications that we need students from such as universities. So यहाँ पे ना हम वो एक बैरियर खड़ा कर देते हैं कि उसके अलावा यूनिवर्सिटी से हमें नहीं चाहिए. Why? सही है, नाम उतना नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, लेकिन you can't judge a person from some label of university because skills नहीं देखती यूनिवर्सिटी का नाम. Skills. I respect your comment, लेकिन इतनी ऐसी कितने इदारे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन होंगी who are labeling the university? आप नंबर बता सकते हैं उनके? For me it's more it's few, but it's 15% companies जो ऐसा करती हैं. Sorry, how much? 50? 15%. नहीं, 15 भी ज्यादा है. I think 5 इदारे होंगे बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के, not more than 5 or 6, उससे ज्यादा नहीं. हम यहाँ पे नाम भी ले सकते हैं उनका. Yeah, those all लेकिन are बाकी very 95. जी बोलिए. जो ये कंपनीज करती हैं, जिस तरह मेंशन रखती हैं यूनिवर्सिटीज का कि इन्हीं यूनिवर्सिटी से हमें स्टूडेंट्स एनरोल करने हैं या अपॉइंट करने हैं, दे आर लाइक अच्छी खासी रिनोन कंपनीज हैं, ठीक है, ग्लोबल कंपनीज. मैं आपके साथ कह रहा हूँ, आई रिस्पेक्ट योर कमेंट, लेकिन ऐसे 4 या 5 या 6 लेस देन 10 इदारे हैं, उससे ज्यादा नहीं है. और SCCP में आप देखें, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इदारों को रजिस्टर करता है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को, तकरीबन मोर देन 2,500 से 3,000 कंपनियां काम कर रही हैं. तो अगर 5 इदारे ऐसा कह रहे हैं तो हमें परेशान होने की क्या जरूरत है? प्रॉब्लम चलें, इस सवाल को स्किप कर देते हैं, बाद सवाल लंबा होगा. ओके, आई गॉट योर पॉइंट, सही है. तो व्हाई नॉट आप KSBL में अप्लाई कर लें,
आप अगरचे कहते हैं KSVL या LUMS एक रेपुटेबल इदारा, लोग इसका नाम लेते हैं, तो why not you are planning to go for KSVL या LUMS? Sir, not going to interrupt, but I just want to say that मेरा जो मास्टर्स करने का इरादा था from the very beginning of my degree, it's like I want to pursue my masters from abroad, अच्छा right? चले, जबरदस्त जबरदस्त। So yes, ओके, अब समझ and- गया समझ गया। Yeah. हम दूसरे सवाल पे आते हैं, छोड़ें जी। ये Sure. बताइए, आपकी पर्सनालिटी में फ्लेक्सिबिलिटी का कितना एलिमेंट है? हाउ मच अडॉप्टेबल यू आर? pretty much like कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? ये चीज मैं अपनी स्ट्रेंथ में डालना चाहूंगी because जी बताइए हमें। observe myself like कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, I know myself to indulge in it completely. like मैं मौका नहीं देती किसी को कि ये देखे कि ये इस environment में नहीं ढल पा रही. There's something which actually triggering her behavior from the environment. So I don't want to give anyone any chance to say that like that. And I know how to actually adapt to the environmental factors. Change जितने भी होते हैं आजकल environments में, आप किस तरह उनको respond करते हैं. I think I know that trick. I know that hack to actually act towards that. जबरदस्त। तो वही मैंने सवाल किया था, मुझे कोई ये आप हमको बताएं, हम सब हजरात को, कि आपने अपनी पर्सनालिटी में कोई ऐसी चीज हो जो आप समझती हैं सही नहीं थी और आपने फिर उसको चेंज या मोल्ड किया, तो बताइए हमें एक्सपीरियंस अपना। एनीथिंग टू शेयर? During my internship period, I have interned in a IGI Life Insurance as a marketing communication internee. So there I've spent more than 4 weeks, and I've came across various changes, various flexibility chances to actually adapt the change. One of the experiences there that I have, there is a responsibility to actually interact with their customers, and to know about their preference and to convey the benefits which my product or which I'm working on for IGI, to convey those benefits to them. So one of the customer just called me up one day, and he just saying that I'm not really satisfied with your service, right? So this is a state where you need to see that not every customer is not every customer is satisfied by your service, not every time. ठीक है? तो अब मुझे उस सिचुएशन से इस तरह डील करना था, with tolerance, with patience, ठीक है, एंड अपना एक कहते हैं ना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखनी थी और पेशेंस भी दिखाना था उसी वक्त. तो ये सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो बहुत मतलब यूजुअली आप फेस करते हैं, और कभी कभार आप करना मतलब आप नहीं कर पाते ऐसी सिचुएशंस को फेस इस तरह करनी चाहिए. कस्टमर डीलिंग में ऐसा आ जाता है सर. तो I called him and I actually counseled him for like 2 hours. And after 2 hours, yes, I counseled him in a separate room in IGI. So after 2 hours, he's like, he actually pretty satisfied, like, wow, you just actually changed my mind in these 2 hours and I don't know how to respond to it. So he just, he just conveyed these statements to my supervisor, who is Jangi Nazar, head of marketing in IGI Life Insurance. And he's very like, okay, this is something really great. You just changed his mind in 2 hours. And how he's someone very rigid customer. See him, he's a very he's a very old customer of IGI, and he was very rigid and very aggressive customer. So that experience, which I think I can quote in having a flexibility trait in myself. चलिए जबरदस्त. बुक्स कौन सी पढ़ी आपने? Although I'm very selective in having readings and reading books, so I used to be more for reality-based novels. So my favorite author is Khalid Hosseini, the Kite Runner and the Mountain Echoes. I really like those stories, and such stories which are very connected with the reality, with the fact actually.
ओके, जबरदस्त। मार्केटिंग आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। Yes. आपने न्यूरो मार्केटिंग के बारे में पढ़ा है कुछ? Neuromarketing is it is just a guess. Neuromarketing might be connected to गेस pharmaceuticals, नहीं करें। medical. नहीं Yes. गेस नहीं, नॉट विद फार्मास्यूटिकल। चलो जी, मिस अरूबा, आपका कोई सवाल हमारे लिए तो बताइए। First of all, I would say that it's a very interesting session. I really enjoyed from the very beginning. सेम हियर। Very rare that I ever enjoyed any interview like this. But well, I just want to ask one thing to you. As far as the post concerned, which is being uploaded for us to know about your companies, you have worked in you are working in Searle company, right? That's a very prestigious pharmaceutical company of Pakistan, more than 55 years of legacy. So can you tell me about your eligibility criteria for appointing candidates to your personnel? जी, हमारे फ्रेश कैंडिडेट जो हम हायर करते हैं वो एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी हायर करते हैं, और उसमें 2 स्ट्रीम होती हैं। वन इज आवर टेक्निकल, जिसमें यूजुअली फार्मासिस्ट जो हमारे प्लांट पे आते हैं, दे आर द फार्मासिस्ट, फार्मडीज, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए एमएससी केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, प्योर जो साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट इज अ फार्मास्यूटिकल प्लांट। और इंजीनियरिंग के लोग होते हैं जो टेक्निकल डेफिनेटली मेंटेनेंस और सारा काम होता है। जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है, एट देयर वी हायर फार्मडी प्लस मार्केटिंग एमबीएस हायर करते हैं ये। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए हमारे एक असेसमेंट हेल्ड करते हैं, जहाँ पे 2 से 3 स्टेप होते हैं। इनिशियल स्क्रूटनी के बाद उनका रिटन असेसमेंट है, ग्रुप डिस्कशन है, देन पैनल इंटरव्यू है, एंड थ्रू दैट वी हायर द कैंडिडेट। और जो लेटरल पोजीशन होती है उस पे वी हैव जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वी हैव टू फॉलो दैट। दिस इज हाउ वी आर डूइंग। Interesting. Ma'am, if you can also join us in telling what's your job appointing process for the candidates. My dear, basically we are a BPO firm and we have a legacy of outsourcing BPO services, mainly in the area of accounting and finance, right? So, and besides that, HR as well. So what we do is that we hire people from the trainee level and then we make them go through our cross-training program, which is a 90 days based program. And during that period, they are not only just trained, but they are being evaluated as well. And then we have different departments catering to our different regions in US, Dubai, and also in Pakistan. And we have different units like offshore, onshore, and nearshore, which is delivering services to these regions. So depending upon the talent and depending upon the panel interviews, verbal and written test, we select candidates accordingly as per their merit, and then they are deployed. So that's all it goes about. And I think before this would be the last, interaction, a moment, and what the overall gesture and just a piece of word to be conveyed to you, that Aruba, regardless whatever you do in life, since your passion is to be, to excel. Your passion is to be to be prominent and to excel in what. So remember that whatever small work that you do in life, if you do it with dedication, if you do it with a lot more sincerity, and for doing that, the most important is self-realization and self-conception. But one thing more is also important, which is self-misconception. So, realization into these areas will help you dig out to know about your own self and put more, value into what you are doing. And जब आप value डालोगे, तो ultimately excel भी करोगे और खुद ब खुद famous हो जाओगे. ठीक है? That's such kind words from you, and I really appreciate it. Highly commendable, and I'm definitely going forward with this strategy, with these words of you. And like, I really appreciate all your advices and career paths goals. I'm really going to look forward to it. Definitely. ठीक है, Aruma, thank you so much for and having good luck. me. Thank you, Aruba. Take care. Thank you, ma'am. Thank you for this opportunity. Thank you. Take care. Allah Hafiz. Dafez. अल्लाह हाफ़िज़।
इनसे you have to leave? Yeah. अच्छा, okay, चलें, ठीक है. Because Thank you so she had much. another commitment, so that's why Shehzad she has to go. जी जी मिस Thank you इंसिया, so थैंक much, यू वेरी and I मच, बड़ा was अच्छा लगा very आपसे बात करके. बिल्कुल मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा and it was a great time. Shehzad, should I let in the next candidate? So we जी have जी 8 आप candidates more. 8 we are done with. So 8 रह गए हमारे अब. ओए होए तो हम थोड़ा सा इसको स्पेस अप करते हैं ताकि सही. कवर अप हो जाएंगे. So I will be accompanying you now. मैं आपके साथ सवाल पूछ लूंगी. जी जी अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम मिस सारा, कैसे हैं आप? मैं ठीक. वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन मिस सारा. आई एम शहजाद एंड आई एम वर्किंग इन सेल फार्मास्यूटिकल एज एचआर बिजनेस पार्टनर. हमें आपका रिज्यूमे मिला है फॉर एक फ्रेश कैंडिडेट के तौर पे. तो क्विकली जरा आप हमें अपने बारे में बता सकें, आप क्या करती हैं, क्या कर रही हैं और क्या आपके प्लान्स हैं? Currently I am doing BBA from DHSFI University and I am in my last semester, and my goal is to continue work in HR field, and I have done 2 internships in the field of HR because I want to get a hands-on experience on it. So I did a first internship in EFU and second in K Electric. ओके, के इलेक्ट्रिक के बारे में हमें बताएं, आपने क्या सीखा वहाँ पे, क्या आपकी अकम्पलिशमेंट रही 2 से 3? I handled almost 4 projects. The one I've loved was the professional development plan of the employees. They told me how they settle for the things. वो किस तरह जो है ना वो अपने employees को देखते हुए उनके training program set करते throughout the year. And the PDP plan I designed for them. Actually, I typed for them to collect all the data together. So I saw कि वो 3 years से चलता आ रहा है and it's continue. And even when I was done with PDP plan, तो हमने एक head count पे project किया था जो कि उस PDP plan पे base कर रहा था. So it was a good experience. Plus they gave me a project to do research on the hierarchy of company. Not only for K Electric but overall एक utility company को कैसी hierarchy follow करनी चाहिए. आप रिपोर्ट किससे कर रही थी वहाँ पे लर्निंग में, कौन थे आपके एचआर के सीनियर? HRBP मारिया वहाज. अच्छा, मारिया के साथ थी आप? जी, मारिया वहाज. अच्छा चलें, जबरदस्त. तो आप ओके, सही, ग्रेट. आपकी एस्पिरेशन क्या है फ्यूचर में, क्या सोचा है, एचआर में जाना है आपने? Yes, I want to continue in management field and especially at talent acquisition. टैलेंट एक्विजिशन के अंदर? Yes. तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन टैलेंट एक्विजिशन एंड टैलेंट मैनेजमेंट? Talent acquisition is a broad aspect, I think. When you target, when you pick the best employees for your firm. Yeah, that's it. और फिर टैलेंट मैनेजमेंट में हम क्या कहेंगे? फिर I guess जिनको हम select करते हैं उनको फिर किस तरह लेके चलना है, their professional development plan and all other things. अच्छा चले, सही है. आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट एरिया क्या है, कभी सोचा है आपने? Can you repeat the question? हर बंदे की पर्सनालिटी में कुछ स्ट्रेंथ होती है ना, प्लस पॉइंट होते हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट एरिया भी होते हैं. तो आपने कोई सोचा है भी, आपको इम्प्रूवमेंट एरिया की फीडबैक मिला कभी आपको? Yeah, yes. When I was doing internship in K Electric, तो उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे questions किए थे जो on the spot मुझे उनके decisions उनको देने थे. तो they told me that I'm weak in that area कि on the spot में decisions निकाल सकूं. तो फिर उन्होंने मुझे कुछ सिखाया भी था और उन्होंने मुझे कुछ चीजें recommend भी की थी कि किस तरह मुझे सोचना चाहिए. HR is a very different field of the company. तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीजें रेकमेंड की थी जो कि लोगों के साथ कम्युनिकेशन बनाने और उनके साथ रिलेशनशिप्स एनहांस करने पे थी, which was really different from bookish things. तो आप क्या समझते हैं एचआर में काम करने के लिए 2 से 3 क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स रिक्वायर्ड होनी चाहिए एचआर स्टूडेंट या प्रोफेशनल में? Patience, adaptability,
and good communication skills. ओके सही। आपने EQ का नाम Because सुना है every कभी? person is different. हम्म, No. EQ टर्म सुनी है आपने? ओके ग्रेट। No. ग्रेट मिस Tasneem, I'm done. Thank you, sir. All right. My last question Wish you to best of you, luck. Sarah. Where do you see yourself after 5 years or 10 years? Like, what do you actually want to pursue? After 5 years, I want to start a business in which I want to do management by my own self. But first, I want to gain hands-on experience from different firms to see where I'm lacking, to polish Okay. my And if I skills. say, okay, tell me 3 weaknesses of Sarah. Like, what are the weaknesses? I guess my strengths are my weaknesses. Because where you think कि आप बहुत अच्छे हैं, वहाँ आप कभी-कभी lag भी कर जाते हैं. So I guess my जी, strengths are my समटाइम weaknesses. हम अपनी स्ट्रेंथ पे इतना ओवर सेल करते हैं, बैंक करते हैं, वो हमारी वीकनेस बन जाती है। तो हम इसके लिए हमें जो है ना बहुत Yes. जबरदस्त सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है। टेक द फीडबैक फ्रॉम योर मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन सो दैट दैट पर्सन कैन टेल यू कि भाई अभी इंप्रूवमेंट एरिया क्या है आपके अंदर। Yes. All right. ओके जी, Thank विश you, यू बेस्ट ऑफ Sarah, लक for मिस सारा। joining. Take care. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Allah Hafiz. थैंक यू, Hafiz. अल्लाह हाफिज। We have next candidate, or should we join the meeting again? Because meeting फिर खत्म हो जाएगी in आप 7 जैसे minutes. कहें, हाँ. Let's join आप back and डिस्कनेक्ट then करें, we'll continue. जी बिल्कुल। Okay. शेर How मलकान, many are left? आई थिंक नंबर 12 में है यारी। Okay. जस्ट अच्छा कनेक्ट हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम, अली शेर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सॉरी सर, वो नेट इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है। नहीं जी कोई मसला नहीं सर, वी अंडरस्टैंड, हम भी पाकिस्तान कराची में रहते हैं। अली ये बताएं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर बेसिकली सिंध सेंट्रल या सिंध डिस्ट्रिक्ट से जावल। अच्छा फिर सजावल। सजावल में एक प्लांट था बड़ा मशहूर हुआ एक जमाने में, सर दीवान शुगर मिल। दीवान शुगर मिल है अभी? या सर अल्हम्दुलिल्लाह अभी है, दोबारा ऑपरेटिंग में आ गया है अभी दोबारा। और दीवान मोटर्स भी था वहाँ पे एक जमाने में? जी सर, दीवान मोटर्स और दीवान शुगर मिल कंबाइन है। ओके, आप अभी कहाँ पर हैं इस वक्त? राइट नाउ आप छत पर हैं? सर जी सर छत पर हूँ, वो नीचे कनेक्शन बिल्कुल नहीं आता। अच्छा कौवा आपको तंग कर रहेगा। जी सर। अली मेरा नाम शहजाद है, मैं HR में होता हूँ सेल्फ फार्मास्यूटिकल। जी सर। आप थोड़ा मैं अपने बारे में बताएं, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सर आई हैव डन माय मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कैट कॉलेज मरी and my intermediate from CAT College Rawalpindi. After that I have applied for army, लेकिन वहाँ पर बेसिकली मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। उसके बाद फिर सर मैंने इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया हुआ था और इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हो गया था मेरान यूनिवर्सिटी में, लेकिन कोई पीयर प्रेशर था कि इंजीनियरिंग नहीं करनी, तो उसके बाद मैंने प्रोफेशनल फील्ड चूज़ की BBA, जो अभी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट सेमेस्टर है। और स्पेशलाइजेशन किस में आपकी? सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यार ये बताएं, देखिए आप आर्मी में जाना चाहते थे, वहाँ नहीं हुआ, पेयर प्रेशर पे आपने इंजीनियरिंग छोड़ दी, तो अब BBA के अंदर तो आप बचे कुछ आए होंगे यार। जी सर, बस यूं ही मतलब एंड यही था कि अब कोई प्रोफेशनल फील्ड चूज की जाए ताकि थोड़ा प्रोफेशनल ग्रो किया जाए। आर्मी की जो रिक्वायरमेंट्स थी तो उसमें ज़्यादा सर टेक्निकल नहीं प्रोफेशनल के साइड था जो इंटरव्यू मैंने दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग से बेहतर यही है कि कोई बंदा प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो जाए, उसके बाद दोबारा अप्लाई किया जाए। आपने अभी तक कोई इंटर्नशिप भी नहीं की? सर इंटर्नशिप मैंने की हुई है। आपने CV में मेंशन नहीं किया कहीं पर भी? आपका सबसे CV स्मार्ट और शॉर्ट CV है मेरे पास। जी सर, CV में मेंशन नहीं की इंटर्नशिप। कहाँ की है? तो नहीं की ना ब्रदर, हाउ कैन आई नो? सॉरी सर। कहाँ की है बताइए। सर ये हमारे पास खासकेली फील्ड है मटियारी में। खासकेली। और हमारे पास गोलार्ची में भी उनकी एक है, मतलब यूनिट ही है, तो वहाँ पर कुछ 2 या 3 हफ्ते की इंटर्नशिप की थी उनके साथ। किस डिपार्टमेंट में, क्या रोल था, कुछ बताओ। लॉजिस्टिक ही था हमारा, लॉजिस्टिक था। जो उनको बेसिकली जो भी यहाँ पर काम कर रहे थे एम्प्लॉयड थे वो ज़्यादातर आउटसाइड के थे, पंजाब के थे मेजोरिटी, तो उनको सोर्स करने में, मटेरियल सोर्स करने में, मतलब जो डेली यूज़ का था उनके, उसके वो इशू हो रहा था उस डिपार्टमेंट में। लॉजिस्टिक का ही सर आप कर लें।
अच्छा, आप उसका कोई सर्टिफिकेट मिला आपको, एक्नॉलेजमेंट है आपके पास? जी सर, जी यस सर, सर्टिफिकेट है मेरे पास इंटर्नशिप। ओके, सही सही। अब आप क्या सोच रहे हैं, वहीं रहना है, उस एरिया में रहते हुए काम करना है, या कराची में मूव करना है? क्या प्लान्स हैं आपके? नहीं सर, मैं हूँ कराची, लेकिन अभी यहाँ पर मेरा असल में फादर की डेथ हो गई, तो उसके बाद जो बिजनेस है हमारा वो भी हम लोग ही चला रहे हैं अभी रिसेंटली। ओहो, इन्ना तो लिल्लाह। वैसे इस वजह से, वरना क्लासेस होती है तो वहीं कराची होते हैं। ओके, सही सही सही। कंप्यूटर पे काम करते हैं आप? सप्लाई चेन कंप्यूटर में पे कौन सर से सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं? सर ERP इंटर, और सर ERP हो रहा है, और उसके बाद अभी हम फाइनेंस, अकाउंटिंग और फाइनेंस के हमारे 2-3 जो कोर्सेज अभी स्टार्टेड हुए हैं, लेक्चर्स। कोई 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 ERP की ओरिएंटेशन मिली है? किसी ने बताया कौन सा ERP है, या एनी आइडिया अबाउट दैट? नहीं, नो सर। ओके, इस पे काम कर रहे हैं। आई थिंक अगर जब सप्लाई चेन में आ रहे हैं तो हर कंपनी ERP पे काम कर रही है, Yes, और sir. अगर चाहिए ERP पे आपकी अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेशन नहीं है तो ये बड़ा आपके लिए मसला होगा, क्योंकि अब एक्सेल में ERP काम नहीं होता। दो एक्सेल Yes, साइडलाइन sir. में काम होता है, हम उस पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सही। क्या किस किस्म के स्पोर्ट्स में हैं आप? सर क्रिकेट, कबड्डी, देखते हैं? जेवलिन, हैमर थ्रो, ये अच्छा। इंटर तक किया था सर, उसके बाद तो सिर्फ क्रिकेट। अच्छा अच्छा, आप सिर्फ देखते हैं क्रिकेट? नहीं सर, खेलते भी हैं। और कबड्डी का स्टेटस क्या था? सर आपके पास, मेरे पास सर्टिफिकेट है और उसमें मेंशन भी है, हम लोग चैंपियन रहे हैं इंटर में, ऑल फेडरल बोर्ड। कबड्डी में? जी सर, हमारा कॉलेज। कबड्डी कबड्डी का चैंपियन कौन है, कौन सा कंट्री है इस वक्त? सर इस वक्त इंडिया, इंडिया? क्या हो गया भाई, पाकिस्तान इंडिया को हराया था? पाकिस्तान। भूल गए यार तुम। कबड्डी तुमने खेली है? सर 4-5 साल पहले खेली थी, और खिलाई गई थी, आप यूं समझे कि कैड कॉलेज अच्छा था तो उनकी। जी जी सर। अच्छा अच्छा, सही, आई अंडरस्टैंड। इम्प्रूवमेंट एरिया क्या है आपकी पर्सनालिटी में? जी सर, सॉरी। अभी क्या सोचते हैं पर्सनालिटी में, किस साइड पे आपको काम करना है, इम्प्रूवमेंट लेके आनी है? सर अभी रिसेंटली मैं अपने आप को ही डेवलप कर रहा हूँ कि दोबारा, अब BBA के बाद, मैं पहला तो मेरा ये जहन था कि बस BBA हो जाए तो फिर ख़त्म, लेकिन अभी जिस तरह लास्ट सेमेस्टर आया तो हम लोग देख रहे हैं कि अब BBA की भी उस सर वैल्यू नहीं रही। MBA तो कम से कम वो हर चीज़ में मांग रहे हैं। जाहिर बात है, जब MBA मांग रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी है कि आपने और डेवलप होना है। तो क्या MBA करोगे फिर? सर इंशाल्लाह। ओके, ग्रेट। और सप्लाई चेन आपने सोचा हुआ है? सप्लाई चेन में नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन क्या है? सर सप्लाई चेन में ही करना है, सेकंड ऑप्शन नहीं अभी भी, क्योंकि सर मेजर यूनिवर्सिटी में मैंने सप्लाई चेन किया हुआ है, तो अगर आगे सप्लाई चेन नहीं होता तो फिर कोई वो वर्थ नहीं रखेगी मेरी डिग्री। अच्छा, नहीं ऐसा तो नहीं कहो यार, लाइफ में इंसान को ऑप्शन A और जी B सर। प्लान करने चाहिए। जी, तो उसके बाद सर है कमीशन की भी है तैयारी। कमीशन का भी है? जी सर। अच्छा, चलें, दैट्स ग्रेट। सर आई एम डन मिस तहसीन, आपका कोई सवाल मेरे लिए, ओके, हमारे माय लिए तो लास्ट क्वेश्चन बताइए। अली, आपकी अभी तक की सबसे अगर मैं कहूँ ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल अचीवमेंट क्या है, प्रोफेशनल अचीवमेंट? प्रोफेशनल अचीवमेंट कुछ इतनी तो भी, कोई लाइक जो खास आपको नहीं लगता है हो कि यार मैंने कोई ऐसा काम किया, कुछ भी ऐसे कोई चीज अभी सर। तक। मैम सबसे ज्यादा मेरी प्रोफेशनल अचीवमेंट ये BBA है जो मैं यहाँ तक कर लिया, क्योंकि जब मैं स्टार्ट में आया था तो बहुत एक, क्योंकि हमारा बिल्कुल एक और बैकग्राउंड था कैडेट कॉलेज का, और ये बिल्कुल, और ऊपर से सूफा यूनिवर्सिटी, कोई और यूनिवर्सिटी होती तो इतना शायद टफ टाइम नहीं देना पड़ता, लेकिन सूफा में बहुत टफ टाइम देना पड़ा, तो ये अचीव कर लिया, ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिहाज से। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू अली, थैंक यू, टेक थैंक यू केयर, सो मच मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। Nofil, are you there? Nofil, are you there? I guess it's जी वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। one down. How are you? जी नौफिल, कैसे हैं आप, सेट हो गए आप
एडजस्ट हो गए, आप बैठ गए? शुक्र जी जी बिल्कुल। और फिर मेरा नाम शहजाद है, मैं एचआर में होता हूँ सेल्फ फार्मास्यूटिकल में। आप हमें बताएं कुछ अपने बारे में, व्हाट आर योर अबाउट योर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस? Right, this is Nofal Siddiqui Shahzad. I am pursuing my bachelor's in supply chain from DH Sofa University, and this is my last semester. And hopefully, I'll be graduating in February with possible transcripts in April. Apart from that, I had hands-on experience on SAP ERP systems for the material management module. Apart from that, I have been also dealing with supply chain services for hospitality industry with a 7 to 8 months active experience at Hotel IT Solutions. And apart from that, I am undergoing some upgradation certifications in the environment of C4HANA for supply chain and SAP. So yes, this is my portfolio as per now. और so far आपकी GPA क्या है? My GPA is 2.73. ओके, आपके यहाँ डिग्री कितनी GPA पे मिलती है, अलाउ करते हैं DHA में? Approximately 2.50 is the Minimum. normal GPA required, yeah. But in order to complete the degree and to be recognized, it's 2. You need at least 2 for that. अच्छा, चलें, जबरदस्त, ये तो कोई मसला ही नहीं हुआ आपके लिए। आपने बताया आपने मटेरियल मैनेजमेंट का किया ओमनी एकेडमी, ओमनी गुलशन इकबाल से किया आपने? I've pursued it from Gulshan Iqbal. और ये आपने जो सैप इन्होंने कराई है, सैप का कौन सा इसमें वर्जन था, रिलीज सी मॉड्यूल याद है? SAP R3 ERP system था, R3 पे, and it was for front user and end user. It was for consultancy as well, and it was for front user as well. Like we used to deal on different screens, which was not only related to the requisition steps, but it was also for the configuration of material from one plant to another. Because you see, in pharmaceutical, what happens, especially the amount of exposure the supply chain department got after the COVID crisis, and especially it impacted the pharmaceutical industry. For that, you need to maintain one particular material from plant to plant, right? Sometimes what happens, due to excess demand, you supply a particular inventory with a particular batch number to customers in one area, and then you need to refill that area with some another plant. So for that, you need a very proper system for stock to stock movement. And you see, after COVID, companies have reduced the amount of manual labor they're hiring. They are cutting their costs. Instead, they're taking a one-time cost of implementing any software. So keeping that in mind, I think the skills I brushed and SAP during COVID will really help me seeking a job, especially in the supply chain department. या नहीं, ऐसा नहीं है, कोई कट नहीं कर रही कॉस्ट कंपनीज, क्योंकि कोविड में ऐसा कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया कि कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी हो, लेबर को कट करना पड़ा हो, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इज काउंट इन एसेंशियल्स, सो फार्मास्यूटिकल प्रीटी मच सिक्योर रहा है। और मुश्किल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ मैं, अगरचे आपको हालात हाज़िरा का पता होता है, कुछ पढ़ते हैं अखबार या न्यूज़? Sir, I have been following newspaper, but not for Pakistan, since I have recently moved to Cleveland, Ohio. So I have been lately not in news for the recent current affairs in Pakistan. But yes, पाकिस्तान के करंट अफेयर में इंटरेस्ट नहीं है, आप फ्यूचर में यहाँ पे होंगे नहीं ऐसा? Sir, possibly yes, because I have a 2-year master's degree and a 3-year post-work visa over here. So total of 5 years in US. So possibly I wasn't in touch with the current affairs recently, but yes, the political scenarios, I do follow them. नहीं, मैं पॉलिटिकल का तो सवाल ही नहीं कर रहा, मैं आपने जो हाना का जिक्र किया, मैं उस हवाले से बात करना चाह रहा था, लेकिन आपने कहा यू आर नॉट इंटरेस्टेड पाकिस्तान, तो थोड़ा, लेकिन ऐसे आप कहीं किसी को जवाब नहीं दें कि यू आर सिटिंग इन पाकिस्तान, आप एक पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स में पढ़े हैं, आपने स्कूलिंग यहाँ से की, आपने बैचलर यहाँ से कर रहे हैं, तो डोंट गिव such kind of response directly to the, वो आप नेगेटिव हो सकता है मार्क के जी, it shows rudeness कि जी आई एम नॉट अवेयर विद पाकिस्तान पॉलिटिकल। बहरहाल ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था कि अगरचे आपने 2 से 3 दिन पहले डॉन पढ़ा हो या न्यूज़ पढ़ी हो, तो LSM जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसके पूरे स्टेट्स आएंगे, इंडस्ट्री की ग्रोथ आई है, तो फार्मास्यूटिकल इज नाउ ग्रोइंग 12 से 14% की ग्रोथ कर रहा है। इवन अगर हम सर्ल की बात करते हैं, इंडस्ट्री 12% से ग्रोथ कर रही है, लेकिन सर्ल फार्मास्यूटिकल इट्स अराउंड 13.25% से ग्रोथ पे जा रही है। तो डू वर्क ऑन दैट। तो आपने कहा
कि पाकिस्तान नहीं तो इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर आज से 3 से 4 साल पहले दुनिया में के जो टॉप रिचेस्ट पर्सन है उनकी रैंकिंग चेंज हुई। आपको पता है कौन नंबर 1 पे आया, 2 पे और 3 पे कौन आया? Sir, I suppose Elon Musk was on number 1, and यू सपोज, तो फिर तो बात सही नहीं होगी। सेकंड पे कौन आया? the second Bill Gates, and third I'm not sure about, so I wouldn't नहीं, answer तो that. आपका आंसर गलत हो गया। इसका मतलब इंटरनेशनल साइड से भी याद नहीं है। चलें, आपने इंटरनेशनल अफेयर में आपका इंटरेस्ट है। आपको पता है कोरोना इज मोस्ट ऑफ द हैपनिंग थिंग हो रही है। जो कोरोना वैक्सीन का ब्रेकअप हुआ है उसमें टॉप 3 फर्म्स कौन सी हैं जिन्होंने इंटरवीन किया और लॉन्च करने जा रहे हैं अपनी प्रोडक्ट? Sir, I think the topmost firm is Pfizer, and I think the second one is a UK-based company, which I don't remember the name for, and the third one I'm not sure about. ओके, कुछ एशिया से पता है किसी के नाम के बारे में है? No, sir. ओके, सही है, सही है। इम्प्रूवमेंट नहीं रही क्या आपकी पर्सनालिटी में? Sir, I think taking responsibility for a particular task more than before, focusing and getting my research done before on the task and implementing my increased capabilities is, I think, one of the strengths which I have increased in the COVID, especially after refining my skills on SAP materials management related to supply chain. ओके, उससे का इज़हार कैसे करते हैं आप? Sir, I think I practice more to relax my nerves rather than taking the better of me, because I tend to, not to eradicate my options from frustration. I rather relax myself down and try to think out of the box where I can and try to go traditional where I need to. ओके, सिबलिंग में आपकी स्टैंडिंग कौन सी है? Sir, I have the eldest sibling. एल्डेस्ट। और आपसे जूनियर कितने हैं? Sir, there are 2 juniors than me. उसमें बॉयज हैं, गर्ल्स हैं? So one is boy and one is girl. I have a younger sister and then I have a younger brother. आप घर में क्लोज किससे? Sir, I'm closest to my mother. अच्छा, ग्रेट। फादर क्या करते हैं आपके? So my father is director Asia sales for Asia Air Astana, and he is in Kazakhstan right now for Air खाना के लिए। ओके, दैट्स ग्रेट। आपका कोई सवाल मेरे लिए? Nothing, sir. Just a few concerns. For example, if I was in Pakistan, I would like to continue my employment with you or something like that. So, how would you place the job security in this COVID crisis, and how would you make sure that an employee's mental health is related directly to his performance during this insecure crisis of COVID? अच्छा, नोफिल, इस बात के 2 जवाब मैं आपको दूंगा। एक वो जो आपने मुझसे पूछा बीइंग एन HR प्रोफेशनल, और एक वो जो मैं अपनी ज़ाती कैपेसिटी में दूंगा। आप पहले आप बताएं, आप किस कैपेसिटी में सुनना चाहेंगे? Sir, I think a basic HR view would be more specific prior to your own view, so that I can line up. ग्रेट। तो आपको पहले मैं आई गिव यू द प्रोफेशनल आंसर बीइंग इन HR कैपेसिटी, कि आपने कहा हाउ डू यू मेक श्योर द जॉब सिक्योरिटी एंड मेंटल वेलबीइंग ऑफ यू या कोई भी एम्प्लॉय के। तो ब्रदर, लेट मी टेल यू, वी आर पाकिस्तान में देयर आर मोर देन 700 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आर वर्किंग एंड वी आर एट 3rd पोजीशन। तो यू कैन अंडरस्टैंड जो सल की जो स्टैंडिंग है वो एट टॉप 5 टॉप 3 फार्मास्यूटिकल में आती है। तो वी आर नॉट कोई रिसेंटली वेंचर नहीं है जिसको कोई फाइनेंशियल हो। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव वेरी गुड मसल्स। जब मैंने सल को ज्वाइन किया था 2012 में, तो वी आर एट 9 पोजीशन है, और विद इन 7 से 8 साल में 7.5 ईयर में we reach at top 3 position in pharmaceutical industry, और इंशाल्लाह हमारा जो next 5 year का प्लान है, we want to be a top pharmaceutical industry। तो फाइनेंशियल बड़ी स्ट्रांग है, लेगेसी बहुत अच्छी है। ग्रुप एक IVL इंटरनेशनल ब्रांड लिमिटेड, इट्स अ वेरी बिग ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह। तो थिंग्स आर वेरी गुड और लोग बड़ा सिक्योर्ड काम कर रहे हैं। इस कोविड में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने लोगों को बहुत फारिग किया, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल ने, लोकल ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेल्स का HR देखता हूँ। जुलाई 2020 में मैंने तकरीबन 532 लोग फील्ड में प्रमोट हुए।
तो डिस्पाइट जहाँ पे लोगों को फारिग किया जा रहा था, हम प्रमोट कर रहे थे। हम जनवरी में खड़े हुए, हमारा मिड ईयर रिव्यू चल रहा है और मैं इस वक्त मिड ईयर फील्ड के प्रमोशन कर रहा हूँ। मैंने तकरीबन इस वक्त मेरे पास 274 रिक्वेस्ट आई हैं फील्ड के प्रमोशन की और तकरीबन 125 प्लस 125 लोग हम लेटर निकाल चुके हैं लोगों के प्रमोशन के। तो यू सी इस कोरोना में इंडस्ट्री में बड़ा पॉजिटिव मैसेज ये है लोगों के, जहाँ कंपनियां रिलीज कर रही हैं, बेनिफिट कट डाउन कर रही हैं, सर लोगों को प्रमोट करिए। तो ये एक छोटी सी आपको बतानी थी जॉब सिक्योरिटी और करियर के हवाले से कितना सिक्योर्ड हैं लोग यहाँ पे। दूसरा जो मेरा सवाल है, आपने पूछा था, जो मैं आपको देना चाहूंगा, जो मिस सेसी ने भी कहा लोगों को आप कैंडिडेट फीडबैक दें पर्सनल। ब्रदर, इन तमाम चीजों के बावजूद देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी। देयर इज ओनली वन क्राइटेरिया फॉर जॉब सिक्योरिटी, जो मैं अपने लिए भी कहता हूँ और आपके लिए भी और सबके लिए भी। योर परफॉर्मेंस इज योर जॉब सिक्योरिटी। अगर चाहे आज मैं परफॉर्मेंस ना दूं तो चाहे कोरोना हो या पोस्ट कोरोना हो या प्री कोरोना हो, मुझे यहाँ से 1 मिनट में फारिग कर दिया जाएगा, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। मैं यहाँ पे एनजीओ या ईडी या छिपा के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन दीज आर द एनजीओ। आज मैं अपनी परफॉर्मेंस नहीं देता हूँ तो अगले दिन मुझे फारिग कर दिया जाएगा। So the only job security is your performance. The day your performance is not up to the mark, your job security is question mark. Definitely. That's all from my side. Okay, Yes, my that last sounds question, Nofil. Sure. What are your greatest achievement right now till date regarding your professional achievement? Ma'am, I think one of the greatest professional achievement which I see myself into is that I have really developed the skills which an employee need in the competitive labor market to be more refined and hands-on on the practical softwares which we have. Because you see, Pakistan is shifting towards SAP now. Yeah, it's a bit late for Pakistan. It shifted to SAP, you know, on like it's, you can say it's 5 to 10 years. Gap which Pakistan has from international market. But again, I think in the COVID when I practiced and I refined myself on SAP, which was a really you know, difficult task because trial and error process. You input and then you learn. So I think yes, because of because of the efficiency and because of the niche I have in the SAP market and especially the consultancy side. So I think that's one thing where I have developed out of the box. If you see, and if you compare out of the other normal graduates which come into the market. So I think yes, getting a great exposure in SAP is one of the greatest achievements I see myself. All right. Thank you, Nofil, for joining. Take care. Thank you. Take care. Hafiz. Thank you. Yes. Can you hear us? Yeah, I can hear. Okay, perfect. जी, अस्सलाम वालेकुम मिस सादिया। Thank you, sir. कैसी हैं मिस सादिया? आप कब से वेट कर रही थी आप हमारा? So actually, the time when the interview has started, so I was just waiting. यानी सुबह 8:30 से आप वेट कर रही हैं? Yeah, but in the waiting room, so for the last 15 minutes. अच्छा जी, तो माय अपॉलॉजीज, सिंसियर अपॉलॉजीज, आपको वेट करना पड़ा। No, it's okay. तो मिस सादिया बताएं अपने बारे में, कुछ क्या मसरूफियात हैं, क्या किया आपने, क्या कर रही हैं? Sir, actually, I'm the student of PH Super University, and I'm doing the Bachelor's of Business Administration, and right now studying in the BB8 and just about to complete the final semester and doing specialization in the HRM basically. So just want to become an HR manager. ओके, HR मैनेजर आप बनना चाह रही हैं? क्यों HR मैनेजर डायरेक्ट बनना चाह रही हैं आप? I have a little experience of the internship by working in the DHA head office in the HR department. So basically, I had worked in the both department, like in the hiring department as well as in the firing department. So like they are very much an excellent people and gain a very much good experience, work experience from them. Okay, DHA में? Yeah, just a DHA head office. हाँ, और DHA में आई थिंक ज्यादातर वो मेंटेनेंस का काम होता है, वो सोसाइटी का, आई एम श्योर ऐसा ही कुछ होगा, लुक आफ्टर करना अफेयर्स ऑफ। No, sir, they have wide departments in their company. Like it's a giant. They have HR, they have marketing, they have finance, they have legal departments. They have a lot of departments working. So that basically the main building of DHA head office
it's actually separated from the HR department. They have purchased one Bangalore specifically for HR working activities. So over there, all the bigger authorities and both the departments and all the offices are there. Okay, आपको HR में क्या role पसंद है? Sir, actually, I like hiring process, and also wants to in terms like training people, because I personally really like to train people, because if people are lack of in skills, if they don't know the innovative technology, if anything the new coming in the market, and the existing employee of the company of HR department didn't know about it, so the duty of the HR people is just to analyze that what is happening in the market, and to make aware of the people and train them. Okay, आप training और teaching को कैसे differentiate करेंगी? Training and teaching. Sir, training and teaching actually can say the two big different perspectives. When the teacher comes in the class and starts lecturing us, it means they are delivering their knowledge and what they have prepared for the lecture to deliver, and as well as their own experience of their journey of education and the professional experience. And the training is somehow also included in that, if the student perceive in the way that yes, we want to gain, like in the previous class the teacher said ki, in the training department there was a HR major course, and she said if the teacher comes to the class and you listen, and you just listen or you just observe it, so think that the observing thing that comes to the training category. A person can train by themselves as well, and teacher fully prepared just to come for training as well and for delivering their knowledge as well. अच्छा, आपने training as a subject पढ़ा है कभी? Training and development? Yeah, right now studying the training and development subject is अच्छा, कौन पढ़ा रहा है आपको ये? Sir, Madam Dr. Sobia. अच्छा, जबरदस्त। ये एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस होती है इसको कैसे मेजर करते हैं और कौन करता है? सर बेसिकली जब आपको बेसिकली एम्प्लॉय परफॉर्मेंस होती है, दैट इज बीइंग मेजर्ड बाय द HR professionals, because it is the duty of HR professionals. See, if the organization have set some visions, some goals to achieve it, and they started working on the mission, okay, by this we can do this, and they have started the expected results, and within a fixed period they're working on. So it is the duty of HR also to observe and see that how the people in each and every department working, like what is their working and how they're growing. So it's very important to collect the data of their performance, like when they are giving the feedbacks, so collect them and analyze them. And also there's a particular format is over there where the managers can rate the work of the individual employees by analyzing all the performance. So the manager comes to know that okay, this employee is doing this much. So if the employee having a less percentage in terms of performance, so it means there is a need of training or there is something lacking. So we need to focus on that. तो इसका मतलब आपने इतना लंबा जवाब दिया, बात ये थी कि जो परफॉर्मेंस है वो HR मेजर करता है, अगेन मैं पूछ रहा हूँ, या लाइन मैनेजर मेजर करता है? Sir, it's HR manager. ओके, मैं यहाँ पे HR देख रहा हूँ फील्ड फोर्स को पूरे पाकिस्तान में, तो इसका मतलब मुझे पाकिस्तान में हर एक के पास 2000 से ऊपर लोग हैं, तो उनके पास मुझे जाना चाहिए परफॉर्मेंस देखने 2000 लोगों की। Sir, sorry, couldn't understand. Please repeat it again. अगरचे HR का काम जॉब मेजर करना है, तो फिर मैं जो फील्ड फोर्स देख रहा हूँ, जो HR को लीड करता हूँ, पूरे पाकिस्तान में है मेरा जो फंक्शन है ना, तो मुझे तो पूरे पाकिस्तान में जाना चाहिए 2200 लोगों की फील्ड फोर्स की परफॉर्मेंस देखने के लिए, मेजर करने के लिए। इज दैट? सर बेसिकली या चले हम इसको इजी करते हैं, आप जब DHA में थी आपने बताया वहां पे उनके बहुत सारे एम्प्लॉयज है फाइनेंस में और दिस एंड दैट, तो क्या आप DHA में सबकी परफॉर्मेंस मेजर करने आप जाती थी?
No, sir. Basically, the work was to write the letters for DHA and to scan the files and to नहीं make वो an मैं आपके audit. काम का नहीं पूछ रहा. आई जस्ट वांटेड टू नो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो जहन में आपने जवाब दिया मुझे कि एचआर का रोल परफॉर्मेंस मेजर करना है. नहीं, ऐसा नहीं है. एचआर का काम नहीं है मेजर. देखें, आपके ऑफिस जो डीएचए में भी एक एचआर डिपार्टमेंट होगा ना, डीएचए सुफा यूनिवर्सिटी का, जो लोगों को रखता है, क्या वो आके आपके मार्क्स चेक करता है? वो आके आपकी जीपीए चेक करता है? No, नहीं, basically, no, the teachers. टीचर्स करते हैं ना. तो यानी टीचर आपकी लाइन मैनेजर है ना. दे आर एक्चुअली कनेक्टिंग विद यू. एचआर तो आपके टीचर की परफॉर्मेंस को देख रहा होगा कि क्या पासिंग रेशियो चल रहा है, क्या स्टैंडर्ड चल रहा है. तो प्लीज मेक श्योर ये मिथ आप हटा दें जी एचआर का काम परफॉर्मेंस मेजर करना है. नो, एचआर का काम सिर्फ फैसिलिटेशन करना है, उस परफॉर्मेंस को मेजर करने में, हेल्प करने में, वो टूल डेवलप्स कराने में. और आपको पता है वो कौन सा एचआर का रोल है जो ये काम में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की? Sure, HR के तो बहुत सारे roles हैं. There are a lot like hiring and orientation and training and performance measures and जी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फंक्शन का काम है फैसिलिटेट करना लोगों की परफॉर्मेंस मेजर करने में ऑर्गेनाइजेशन. जी जी. अच्छा, कोई बुक पढ़ी आपने एचआर पे कभी? Yeah, sir. I have studied the basic principles of HR, then have studied the recruitment and selection process, then I've studied the negotiations, then right now studying the organizational development along with the training and development of अच्छा, the. जबरदस्त. ये बताइए, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या फर्क होता है? Sir, recruitment में ये होता है, there are basically the levels of hiring employees. So basically when the pool of resumes come in front of the HR manager, HR manager, so basically they at a glance view all the resumes. So they call for the interviews and उसके बाद they shortlist it. This is called recruitment, and when the shortlist is, it means the final interview the candidate is about to select. थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन ज्यादा सही नहीं है आपका जवाब. रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट इज ऑल अबाउट अट्रैक्टिंग द कैंडिडेट टुवर्ड द पोजीशन. रिक्रूटमेंट में अट्रैक्शन आती है. व्हेन इट्स कम द वर्ड सिलेक्शन आती है, तो वहां पे रिक्रूटमेंट के बाद जो पूल ऑफ कैंडिडेट आ जाता है, उनके लिए डिफरेंट टेस्ट या डिफरेंट असेसमेंट सेंटर हेल्ड किए जाते हैं. एंड फ्रॉम देयर वी शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट एंड देन वी फाइनलाइज द कैंडिडेट. तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इज ऑफ अट्रैक्शन. इट्स अ प्री एंड पोस्ट एक्टिविटी. आपने कोई एचआर के किसी राइटर को जानती हैं आप जिसकी आपने किताब पढ़ी हो? Sir, no, कोई basically, अच्छे एचआर वाले का नाम जानती हैं आप, वो बता दें हमें. yeah, in the DHA head office there are HR specialists like Sir Colonel Saki, and he's an HR professional. Along with him, there is one more colonel over there, and there are in the hiring department as well. There is also one bigger authority of HR. So like them, there is big. लेकिन वो तो आपकी लाइन मैनेजर्स है ना, उनको मिस तहसीन या मैं नहीं जानते. कोई ऐसा नाम जो फेमस हो, जिसको लोग जानते हो, मानते हो, सुनते हो, कोई ऐसा नाम बता सकती हैं? Sir, in terms of related to the company, means in terms of related to the company means any. नहीं, कंपनी हो या आप कोई एचआर वाले का नाम बता दें कि जी, जैसे लेट से आप कहें जी हमारे फवाद खान है, उनको पूरी पाकिस्तान की दुनिया जानती है ना, दे आर द नेम. अब मैं कहूँ मैं स्मार्ट बंदा हूँ तो मुझे तो कोई नहीं जानता ना, लेकिन उनको पूरा पाकिस्तान दुनिया जानती है. तो ऐसे एचआर आपको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में बता दें हमें. मुश्किल सवाल है, सोचिएगा इस पे. चले एक नाम मैं आपको बताता हूँ, दो नाम आपने सर्च करने हैं. डेव वुलरिच. जी जी. डेव वुलरिच, आपने इनको सर्च करना है, इनको पढ़ना है. Right. और आप पढ़ सकती हैं डैनियल गोल्डमैन को. Daniel. जी, डैनियल गोल्डमैन. और आप वैसे और बहुत सारे नाम हैं, और पाकिस्तानी में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं. तो ये है. चलें, आपका कोई सवाल हमारे लिए मिस सादिया तो बताइए, सो दैट आई एम डन, वी कंक्लूड. Sir, basically, I have the very major questions about the HR practices. Since also doing the major in HR, so one day someone informed that like we're studying the many HR functions and the duties and the responsibilities in the books,
And when we go practically into the professional fields, so there are some companies, there might be some companies might they not be following the entire HR functions, means entire HR duties. So was really confused on this point, so really wanted to know about it. सवाल काफी बड़ा था, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, एंड इवन सेक्टर टू सेक्टर। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं फार्मास्यूटिकल की बात करूँ, इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, मल्टीनेशनल थी 90s में 80s में, लेकिन अब जो है लोकल फार्मास्यूटिकल आर टेकिंग ओवर द मल्टीनेशनल। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो टॉप 10 टॉप 20 इवन टॉप 30 मल्टीनेशनल हैं, वहाँ पे HR फंक्शन प्रॉपर्ली स्टैब्लिश है। FMCG की बात करें, आप यूनिलीवर ले लें, PNG ले लें, आप लोकल ले लें, हमारी शान ले लें, आप NFL ले लें, नेशनल फूड्स, दे ऑल हैव वेरी गुड स्टैब्लिश HR डिपार्टमेंट। हाँ, अगरचे आप लेट्स से कोई छोटे इदारे में आए हैं तो वहाँ पे HR इतना इवॉल्व नहीं है, वो सिर्फ हायरिंग कर लेते हैं, बाकी और चीजें नहीं है। तो डिपेंड करता है आप किस सेक्टर में जा रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, ये वहाँ पे काउंट करता है। Depended upon the level of the organization where they're working, and even that जी लेवल हो गया, सेक्टर हो गया, उनकी ओरिएंटेशन हो गई। बहुत से ऐसे इदारे हैं हमारे फार्मास्यूटिकल में जो 30-40 साल से काम कर रहे हैं, बट दे डोंट हैव वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड HR डिपार्टमेंट, दे डोंट वर्क टू मच ऑन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या T&D पे काम नहीं कर रहे। आई एम वर्किंग विद डायरेक्टली विद माय बिजनेस मैनेजर्स, बिजनेस लाइन के साथ काम कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ वेरी गुड सेटअप एंड वी आर एंजॉयिंग। All right. So I am done, Miss Sasin. आपकी Thank you, Sadia. Thank you for joining in. Take care. Dafis. Thank you so much, ma'am.